बात ही होती है कि लाइफ में अब करना तो है ना, मतलब एडवेंचर. तो इन केस यू आर सीइंग दिस वीडियो, इट मीन्स दैट आई एम डेड. Once upon a time, we went to K2. Who were we? We were founders, CEOs, businessmen, and influencers. But more than that, we were 19 humans who wanted to talk about things that matter to us. Things we felt were important and meaningful. Things that were unresolved in our minds. Things that were keeping us up all night. Yes, we talked about business, entrepreneurship, and how the world works, but more importantly, we talked about regular basic stuff. Things that are as simple as, hey, how are you? What's your story? To things that were deeper, like, why do I feel lost all the time? Am I supposed to know what I am truly doing here? Or is there a greater purpose to suffering? And truth be told, K2 is the main character in our story. Brutal, original, and unyielding. It breaks you a little, but don't all good teachers do that? That was the point of K2preneur, I guess. To combine adventure, thrill with entrepreneurship. To put ourselves in situations that shatter our sense of identity, challenges our worldviews, and force us to shed parts of ourselves and pick up new ones as we traverse through rocks, sand, and sometimes ice. At K2, there were no CEOs, entrepreneurs, influencers, but only men and women. Small and unknown. How did it go, you may ask? For that, you have to travel with us. And now that I have you with me, there will be 20 of us who will go to K2. This is not going to be a picnic. This is a very serious stuff that we are doing. So if you are coming with some mindset of going on some vacations or holidays or picnic, then please let's realign our thoughts. You have to understand that it's an adventure trip that you are going to join that involves serious trekking, that has so many variables and uncertainties and complexities that things can very much go out of the plan. मतलब है तो बड़ा क्लीशा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपका वाई क्या है K2 जाने का? पहले तू अपना दस. यार आई थिंक टू मच स्टफिंग कर दी है हमने अपने इर्द गिर्द नॉइज़ की. मेरा ख्याल है कि वंस इन अ वाइल अगर नॉइज़ बिल्कुल कट ऑफ हो जाए तो आई रियली नीड टू कनेक्ट विद माई सेल्फ टू फाइंड माई वाई. सो फाइंडिंग वाई इज़ नॉट एन इवेंट दैट हैपन्स ना, इट्स एन ऑन गोइंग जर्नी. सही है, और जितनी क्लैरिटी मिल जाए उतना अच्छा होता है. We've been here for 2 hours. We've been here for 3 hours. It's been 3 hours. I thought it was a leaf. What was it? A beetle.
Just an hour. Where are you? What are you doing? Why are you running? How are you feeling? What are you doing? Where are you going? Where are you going? On a serious note. I don't know, I can't see. So why on the roof? Why are you not sitting inside? Because I want the view, this view. साढ़े 20 साढ़े 20 हाँ 20 कर दो 20 कर दो नहीं हो गया एक मिनट कॉन्सेंट्रेट 17 ये कौन किसका है लूका इतना टाइम नहीं है हमारे पास 25 लूका 14 एक मिनट नाम मुनीब जब बर्फ शुरू होगी ना 2 दिन बाद आपको पता भी नहीं लगेगा बर्फ कहाँ शुरू हुई और कहाँ खत्म। सो ग्लेशियर इज नॉट लाइक सॉफ्ट ग्लेशियर इज वहाँ पे बोल्डर्स हैं, स्क्री है, मिट्टी है और नीचे जो है ना वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स की बर्फ है। राइट पे करके रुकने अब उसको स्क्वाट करे, कमर सीधी होनी चाहिए। भाई चलो चलो Before organizing this whole thing, before coming up with the idea, I did not expect it's gonna be so hard for the whole group. Today we are having entrepreneurship की sessions हो रहे हैं, गाना बजाना और लोग कपड़े धो रहे हैं। वॉशरूम पीछे नाम के वॉशरूम तो हैं बट यूज़ करने के काबिल नहीं है, सो एवरीवन सारे बाहरी जो भी करना है वो कर रहे हैं और इट्स गोइंग गुड सो फार। बट द एम भी यही है कि अगर सब कुछ आसानियाँ हो जाएंगी तो दैट इज़ नॉट हाउ एन एंटरप्रेन्योर वर्क्स। Creating content, I'm here to learn, right? Like I'm here to learn learn the skill of entrepreneurship from you guys, and I feel for me the way to do that is to hear about your journeys, your personal journeys, your entrepreneurial journeys. Tomorrow is Glacier, Ajay, yeah.
How was the कुछ नहीं करने washroom? आया तुम्हें फिट था किया क्या? और How was the water? yeah it was very cold yeah Right. यानी कल का दिन आएगा नहीं आएगा, हम कंट्रोल जाएंगे नहीं जाएंगे, जी चले जाएंगे नहीं जाएंगे, अनसर्टन बातें, होता जाएँ होता मरमरा जाए या जो भी हो। मैं यहाँ पर सर इसलिए आया हूँ कि मुझे लगता है कि आई हैव मेड माई लाइफ सो बिजी इन टू डूइंग थिंग्स दैट आई रियली डोंट वांट टू डू, सही, एंड आई नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। जैसे वो एक फियर्स व्हील था ना, हम गए थे उस व्हील के अंदर, हमें पता था यहाँ से खाना मिल जाएगा, मिल गया और हम वापस आ जाते, नहीं, हम उसमें अब चलना शुरू हो गए। वो एक प्रोसेस फॉर द सेक ऑफ प्रोसेस है। क्यों करना है? इसलिए करना है। अच्छा यूँ क्यों करना है? इसलिए करना है। अच्छे कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि जॉब पे जाना है। जॉब पे क्यों जाना है? वो अच्छे कपड़े खरीद सके। अच्छा फिर ये क्यों करना है? क्योंकि मैंने लोगों को इंप्रेस करना है। लोग कौन है जिनको मैं पसंद भी नहीं करता। अच्छा फिर जेलसी क्यों होनी है? क्योंकि उसके पास है मेरे पास नहीं है। हो सकता तेरा उसका पास ही सेम हो। क्या तुझे वो बनना है जो वो बन गया? नहीं, मुझे वो नहीं बनने लगा, मुझे फिर भी जेलसी है। It's gonna be long day, but inshallah everybody's up. High morale and inshallah, let's do it. It's a cloudy day right now. Maybe it rain. प्रोजेक्ट लूज होता है, वो एक्सीडेंट्स होते हैं इंटरसेक्शंस में, प्रोजेक्ट लूज होता है हैंड ओवर्स में। इसने इसको प्रोजेक्ट बनाया, इसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी, प्रोजेक्ट लूज हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट भी एक हैंड ऑफ पे काम कर रहा है। हाँ, इन्फॉर्मेशन इसीलिए अब इस हैंड ऑफ के ऊपर ना मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यहाँ पे भी आपको ना एक यूनिट बैठना चाहिए, हाँ, जो यहाँ से प्रोसेस में इन्वॉल्व हो और फिर यहाँ से हैंड ऑफ करके फिर आगे जाए। नॉर्मल बिजनेस जो होता है वो टीपू सुल्तान होते हैं, ठीक है, टीपू सुल्तान थे, और जो प्रोसेस वाला बिजनेस होता है ना वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी होती है, ठीक है। अब उसमें एक भी टीपू सुल्तान नहीं है, लेकिन प्रोसेस ऐसा है कि 30 फुल टाइम एम्प्लॉइज पूरे बड़े शरीर पर हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोसेस के ऊपर प्रोसेस के ऊपर प्रोसेस ऊपर प्रोसेस बीट नहीं हो सकता। सबसे बुरा काम चल रहा है, रोज़ उठ के सब कुछ पैक करना पड़ता है, स्लीपिंग बैग, जैकेट्स, एवरीथिंग। दैट्स द मोस्ट हेक्टिक पार्ट
आपका पैक हो गया? So मेरा गलती ख्याल ये है कि बिजनेस की ग्रोथ में एक्विजिशन मर्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं हो पाएगी जब तक के दरमियान में थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है। आर्ट ऑफ स्टार्ट पढ़ी आपने? आर्ट ऑफ स्टार्ट 2.0 गाय कावासाकी, वो टेक में मुझे काफ़ी अनेबल उसने किया था। फिर टेक की अगर बात करें तो लीन स्टार्टअप मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब हम वैसे निकल पड़े तो हार्ड थिंग्स अबाउट द हार्ड थिंग्स, वो बहुत अच्छी है। So this is उर्दू का कैंप साइट, अमेजिंग व्यूज़, अमेजिंग टेरेन, ग्लेशियर के ऊपर हैं अभी, और इसके बाद आपने गोरो 1 जाना है, गोरो 2 जाना है। कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ अभी भी रास्ते में। इट वाज अ डिफिकल्ट टेरेन। प्लस आज एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं मुश्किल होगा, तो मुश्किल हो गया। काम था मुश्किल, स्टीप था काफ़ी। मैं जब इनके साइज से था ना, मैंने जाकर डॉक्टर जरताज साहब से मशवरा किया था कि सर मेरे मसले आप नहीं समझ रहे, मेरे बड़े यूनिक है। उन्होंने कहा ब्रो नहीं है यूनिक, एट जूम आउट लेवल एवरी बिजनेस इज द सेम। जैसे तबलीग में नहीं शुरू करते थे, शुरू में तबलीग में कहा करते कि यार असूल टूट जाए बंदा ना टूटे है, और बाद में बात मैंने ये भी सुनी ख़वातीन की तबलीग में ज़्यादा कि नहीं भाई असूल नहीं टूटेगा, बंदा टूट जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ होगा? ये होगा कि तबलीग इतनी बड़ी हो गई कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार ये प्रोसेस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिविजुअल्स की वो वाली मर्जी उस तरह से नहीं कायम रह सकती। ठीक, ये हर कंपनी की एवोल्यूशन यही है। 1 सेकंड, 2 6 4 कितनी बचत हुई? 2 6 से ये मर गई, अंदर से निकाल, 1 6 से ये निकालूंगा। हाँ दूसरे 2 6 आया था। यस, हाँ इससे ये 6 पे निकाले। हाँ एक निकाल देना, 5 4 अगली बार। और मेरे पास जितनी शर्ट्स हैं वो सब ब्लू कलर की। Today we're trekking towards Goro 1 camp, and this morning it's so gloomy. It was raining a little, so hopefully inshallah it will clear and we'll have more epic views of the mountains. I'm feeling really good this morning. I had a really good rest last night, and I'm really excited to keep going. Let's go. और हमने
कोई 3 किलोमीटर कवर किया है, आगे 9 किलोमीटर बाकी है और वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि जो लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत डिफरेंट होता जा रहा है। नहीं आ रही सिग्नल अहमद। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। मम्मी कैसी हैं? हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक। हम लोग K2 से एक दिन दूर हैं। ये जगह यहाँ पे गोरो जहाँ पर सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं ना, तो बस यहाँ पहुँचा हूँ अभी। बहुत आप लोगों को मिस कर रहा था। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सेहत ठीक है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बीमार नहीं हुआ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि ठंड है यहाँ पे, लेकिन कोई बीमार नहीं हुआ। यार मैं तो जैसे ही बात की तो बड़ा रोना आ गया। अच्छा हाँ हुई है बात? हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो वीडियो चैट हुई ना, दो मेरे बेटे भी हुई, बाबा बाबा बाबा। तो बड़ा इमोशनल मोमेंट था यार। सो हम गोरो 2 के करीब हैं और ये जंक्शन राइट देयर कनकॉर्डिया हमारे सामने नज़र आ रहा है। वहाँ से जंक्शन से अगर आप राइट हो जाएंगे तो आप चले जाएंगे गोंडोगोरो और लेफ्ट हो जाएंगे तो K2 बेस कैंप। तो जस्ट 1 मोर डे लेफ्ट मैन, वेरी नियर इंशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह, सब आए खैरियत से आए। अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह कल हमें K2 दिखाएं। There is a good news, but it's not a good news for you. Uh-oh. What is it? Today, food is very good. But it's me. But it's I knew it. नीचे से बर्फ की सिल्ली में से ना कमर के अंदर ना सर्दी घुस रही है। बंदा क्या करे? किधर मरे भाई? Where were you? Where were you? K2 summit. This terrain is way more difficult than I expected. अब इस टाइम पे तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं, बाहर शदीद बारिश हो रही है। आपने बाथरूम जाना है तो आपने बारिश के थ्रू जाना है। ठंड बेइंतहा है, ज़मीन ग्लेशियर की है, तो अगर लेटेंगे भी तो ठंड लगेगी, लेट भी नहीं सकते। और जितना मर्जी अपने को प्रोटेक्ट कर लो, जो मर्जी कर लो, कोई देयर इज़ नो वे आउट। अच्छा बात सुन, नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, फिर आज वज़ू कर लेते हैं। आपने पढ़ ली नमाज़? आ जाए ना, कर लेते हैं वज़ू, फिर हम जमात कर लेते हैं। बल्कि अगर आपको यकीन हो कि आगे भी ऐसा वेदर है तब आगे जाना चाहिए। हाँ K2 तो देखना है ना। K2 48 आवर्स में आपको विंडोज़ मिलती हैं लाजमी में। आज थोड़ी देर के लिए सिग्नल आए थे तो उसमें घर वालों से बात भी हो गई, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं सारे। लेकिन ये जो अभी बारिश वाली सिचुएशन है ये बहुत लीथल है। At times you'll ask yourself, why am I here? I have so many times a day where I just wonder, like, why am I doing this? Is this fun? But then you see a mountain and you're like, yeah, it's kind of worth it. Do you mean the mountains covered by all the clouds? Yeah, those. So right now it's hard to find a reason to be here. Yeah, everything is very down. घर बैठो, K2 नहीं आना, K2 नहीं आना। नेक्स्ट टाइम मैं जितनी मर्जी कैंपेन चलाऊँ, जो मर्जी कराना, K2 नहीं आना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। घर बैठो। We got lucky because it's
my birth certificate got like we all got like project We thank you. at K2 for the first time ever. For the first time in the history of K2. For the first time in the history of mankind. अब तो आएगी नहीं. Cake in mountains. Happy birthday to you. Happy birthday to you. You have 3 wishes, huh? One of them, make for no rain, huh? Yeah. After I offer namaz, I need to breathe. मैं 2 बजे उठ के बाहर आया, फुल चांद निकला हुआ था, कोई बादल नहीं थे दूर दूर तक और बहुत प्यारा मौसम था। हल्की हल्की वहाँ से लैंडस्लाइडिंग की आवाज़ें आ गई। मैं आधा घंटा बाहर बैठ रहा, पहले मैं सोचा बाकी लोगों को भी उठाऊँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं कहा यार होता लोग गहरी नींद सो रहे हो, मैं नहीं उठाया, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। गोरो 2 इज़ प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट डे सो फार। I have packed. In all honesty, Muneeb, we had mountains all around us. We can't see none. Yep. So there is a possibility हम K2 भी ना देख पाएं. अरे अल्लाह मौसम बहुत आसानी वाला हाफिज वाला मामला कर दे, हमें K2 का दीदार करा दे। चलो निकले। चलो जी चलो, बिस्मिल्लाह मंजूर। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम है, मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। Very cold. We've received internet after so many days, and we're sitting in front of K2, but we cannot see it. Hopefully we will. There is full moon tonight, so that's what I'm looking forward to. सर्दी बहुत है, बारिश भी हो रही थी, बस अभी रुक गई बारिश। अब थोड़ा महसूस कर रहा हूँ गर्मी। some of us it was the first track, for some of us it was not the first track, but it felt like the first track, right? The weather was harsh. No matter if we go to GGLA or not, this is an achievement in itself. So huge round of applause for everyone. We all made it to K2 Patel.
And without further ado, Ahmed, please join. Sir. Amir Adil Saleh. Thank you. Saad bhai. You Netherlands to half K2. Adil. Saif आने वाला. Really, yeah. Big boys. Second time entrepreneur. Sir. Big boys. Great relationships with big boys. Sometimes rude, sometimes polite. The youngest K2 बने हो जी. इसके तो पापे अभी तक नहीं बोले अपने को. To Usman Asif now. एक गोल्ड मेडल और मिलेगा जब जीजी ला करेंगे. Congratulations. उमा. उमर भाई रह गए. खराब हो गए. A great judo player who doesn't accept the defeat. That's fine. Jijila. The legend, the myth. We all will do Gigi like Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Up next, Jijila. Up next, Jijila. Up next, Jijila. Up next, Jijila. ये सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वक्त है जी. हम कनकॉर्डिया बैठे हुए हैं. कनकॉर्डिया को थोड़ा समझ लें. K2 जो है ना बड़ा शर्मीला सा माउंटेन है. इसके बड़े नखरे हैं. अभी हमारे पीछे इस टाइम K2 है, लेकिन हम 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और सिर्फ एक रात ऐसी आई जिसमें हमने K2 को देख पाए. Product के लिए. Part of business is generating revenue. Why you not letting that business move? You can't produce entrepreneurs from case studies. मेरा ये मानना है. Case studies is always about red oceans. Blue ocean you have to create. Entrepreneurship initially it's about problem solving. And ये case studies helps you make some good decision based on the past. For example, मुझे केस स्टडी ने हेल्प किया. स्टारबक्स ने जब प्लास्टिक वाले स्ट्रॉज पे उनके खिलाफ एक कंट्रोवर्सी चली थी तो उन्होंने उसको PR वाइज कैसे हैंडल किया और क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया. इस पे केस स्टडी होगी, मुझे हेल्प करेगी ये चीज़. हम कौन सा अनोखा काम कर रहे हैं? ये स्पेशली पॉटर ने बार उठा के लाया इधर, जिसे बल्ती नहीं आती. डफल बैग में ये हमने बार रख के लाए हैं. मैं ही कह रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट रेज करनी है और आपको सारा प्लान नजर आ रहा है और आप टोटली इन कंट्रोल हो. मैं नहीं समझता कि इन्वेस्टमेंट रेज करने से कोई मसला है या VC फंड आप ना दो उनको वोट. मैं सवाल नहीं पैदा था कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट रेज करूँ मैं उनको वोटिंग राइट्स दूँ इस बात के कि यार वो बोर्ड कौन लगाएगा, CEO क्या होगा. भाई मेरे पास सारे राइट्स हैं, आपको बस पैसे मिल जाएंगे. आजकल तो ये सीन है कि बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, कचहरी होती हैं सॉर्ट ऑफ. आप यू हैव टू प्रूव ऑल द थिंग्स दैट यू आर डूइंग राइट. ये नहीं आप कह सकते कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है. लॉजिकली खुद प्लेस करना चाहिए. आपको भी चाहिए कि अपना बोर्ड प्लेस करें. जो ये कंपनीज फेल हुई हैं इन्होंने एक तो इनकी यूनिट इकोनॉमिक्स जो है ये ऑफ थी और बिजनेस मॉडल इनका सही से फिगर आउट नहीं हुआ था. ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी कोई ऐसी एग्जांपल्स नहीं थी जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉफिटेबल हो. ये जो Q-कॉमर्स है ये इसका वो शिफ्ट कर देंगे मेरे को. अच्छी लगी आपको ये? अरे मुझे वो बेहतर, वो ज़्यादा बेहतर लगी. ठीक है. टिपिंग पॉइंट बेहतर है ना यार. वो बाहर बहुत ठंड है भाई. किचन में कम से कम गर्मी तो है ना. अभी टेंशन ये चल रही है कि आगे जाना है कि वापस जाना है, क्योंकि बारिश की समझ नहीं आ रही. बारिश की मूड स्विंग ना हमारे पॉलिटिकल हालात पर है, कभी आता है कभी डाउन है. This is all kind of the moment we've been waiting for, and kind of like not the goal, but one of the the highlights of the trek. And it feels amazing to be here. It feels unreal, to be honest. Like the fact that I'm sitting here reading a book and just K2 is right there. ये वो लोग भी हमारी एक मोटिवेशन है जो K2 को टॉप तक सर करते हैं. तो हम इस जगह पहुंच कर रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं भाई वो बहुत मुश्किल है. मतलब जो K2 के ऊपर जाना है वो उनकी तो गेम ही अलग है, वो तो लोग ही अलग है, उनकी जो थिंकिंग है, सोच है, वो सब कुछ अलग है. और एक मैं अपनी लेट मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ. कल से जब से कनकोडिया आने का हुआ है तो तब से उनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उनको मैं हमेशा तंग करता था कि मैंने K2 जाना है, तो वो मुझे मना करती थी कि K2 नहीं जाना. मैं इंशाअल्लाह जैसे ही यहाँ से वापस जाऊँगा तो पहले छुट्टी जाऊँगा. तो मेरा तो यही है कि जैसे ही यहाँ से K2 से वापस जाएंगे तो सबसे पहले भी छुट्टी जाना है. अब यहाँ पर डिसीजन ये है कि
या तो यहाँ से वापस चले जाए, कनकॉर्डिया हो गया, K2 पन्योर के लिए आए थे, K2 देख लिया, कनकॉर्डिया हो गया, वापस जा रहे हैं। और लेकिन उसमें मसला ये है कि वापस जाना पड़ेगा उन्हीं 5 दिनों में जिन 5 दिनों को हम करके आए हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है, तो 5 दिन काफ़ी बोरिंग होंगे, प्लस ऑब्वियसली मुश्किल भी होंगे, सही है, और सारा सामान और सारी लग्जरी सारा यहाँ से वापस जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन ये है कि जिस वैली में हम बैठे हुए हैं कनकॉर्डिया से, यहाँ से हम इसको पास करें और हम हुशे वैली में चले जाएं। So finally we have come to the point where this decision was supposed to be made. Of course, you all aware. यहाँ पर it's life and death that is involved, and I mean no joke. I am very serious. There is life and death involved. मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, चूँकि मेरे पास ना इस वक्त आपको पता है कि यहाँ पे मोबाइल सिग्नल है, ना वैसे भी हर चीज़ जो है अनप्रेडिक्टेबल जा रही है। इस दफ़ा हमने देखा है कि कभी इंटरनेट कुछ बताता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ होती है। The weather is not ideal. The weather for Jijila Pass is not ideal. In past 2 to 3 days, it has been snowing. So when it snows, that means there is a lot of soft snow up there, and there are some crevices which open up, and it creates a lot of problems. यहाँ पे नॉर्मल लोग जो है ना, लोकल लोग पहले जहाँ टेक्नोलॉजी आने से पहले ये पयू पीक आप देख रहे हैं इस वक्त कवर्ड है, इसको देखते होते थे, और ये चुंगली सा इस वक्त जो बादल छाया हुआ है, इन दोनों को देखते होते थे जो जहाँ टेक्नोलॉजी के आने से पहले। अगर ये दोनों अगर यहाँ पे ख़राब है तो मौसम ख़राब है, अगर ये दोनों क्लियर है तो मौसम साफ़ है। ये जो लोग पुराने लोग इसको देखे प्रेडिक्शन करते हैं, अभी तो यानी ख़राब है, अभी तो ख़राब है, इस वक्त की सूरत हाल ये लग रही है। Each and every one of you need to assess yourself individually, and that needs to be done in silence, and that needs to be done in privacy, because this decision needs to be made here, not here. So overall, we are going ahead with Gigi. But let's not jump into this decision emotionally. वेदर बहुत ख़राब है और जो जनरली होता है उससे मे बी 10x मुश्किल होगा, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई लिव फॉर। एडवेंचर हो ज़िंदगी में, रिस्क बंदा ले, क्योंकि K2 आए बाद में आए ना आए, और जिजिला इज़ समथिंग दैट आई बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू, बाद में रिग्रेट हो तो आई डोंट वांट दैट। ये ट्रैक हम तो लग्जरीज में कर ही रहे हैं, और ये सारा ट्रैक और ये सारी कंफर्ट और ये सारी लग्जरीज और ये सारा जो हमारा अरेंजमेंट्स हैं, ये इसके लिए अगर हमारे पास ये टीम ना हो तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। I don't want to say thank you to one single member. I want to say thank you to everyone. As a foreigner coming to Pakistan, many people were scared, but I don't think I could feel more safe, and I think I can speak on behalf of Luca as well and Flora. You've made us feel so safe. You've really shown us the true meaning of Pakistani hospitality. There hasn't been a moment on this trek that I felt unsafe. Even in the background, I feel like they always keep an eye on you. They always make sure you're okay. Even though sometimes we don't speak the same language, we do like this. कि वो अल्फाज जो है ना उसका हक अदा नहीं कर सकते, जिससे मैंने कहा ना हम एक लफ्ज़ बोलते हैं और वो अदा होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ तक सबको खैरियत से लाए, बस दुआ करें इंशाल्लाह बाकी भी खैरियत से लेके जाए और हमारा ये साथ जो है ना आने वाले सालों में कायम रहे। थैंक यू एवरीवन। एक ग्रुप फोटो सारों की ग्रुप फोटो यार, कुछ को बैठना पड़ेगा ज़रा, मॉस्को मैं इस कर दूँ, मैं आगे तुम्हें इंट्रो दूंगा, ठीक है? कर दो, मैं इंतज़ार करना, मैं तुम्हें इंट्रो दूंगा। कहाँ जा रहे हो? जी कर दो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इंट्रो लेंगे, हम बाग में बैठेंगे होटल की, आराम से इंट्रो लेंगे, ठीक है? अल्लाह पाक उसको हमारा आखिरी ट्रैक ना बना, हमें बार बार ट्रैक करने की तौफीक अता फरमा, बार बार अपनी कुदरत देखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आपस में मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये जो जितने भी हमारे जो हिफाजत करने वाले हैं, हमारा सामान उठाने वाले हैं, इनको जज़ाए खैर अता फरमा, इनको अल्लाह पाक तो खूब अता फरमा। अल्लाह पाक इस इलाके की, पाकिस्तान की, मुल्क की हिफाजत फरमा।
सारे टीम का प्लान था कि हम जिजिला करने का। जिजिला में सारे लोग नहीं कर सके, 30 में से 20 हमारे साथ उधर गए, कुछ जो है वापस सेम रोड वापस आ गए। अली कैंप आए हैं, अली कैंप आ रहे हैं जी। आज का दिन और आज की रात इज़ गोइंग टू बी द टफेस्ट ऑफ दिस होल ट्रिप। जिजिला करना रात को हम तकरीबन 700 मीटर चढ़ेंगे और 1200 मीटर उतरेंगे एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5600। उस टाइम थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि एल्टीट्यूड हाई हो गया। अभी अली कैंप भी बहुत मुश्किल लग रहा है और बर्फ़बारी भी हो रही है तो सर्दी भी शदीद है। आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदमों के साथ अली कैंप जो है वो तकरीबन हम लोग 3 से 4-5 बजे तक पहुँचे और वहाँ जाके कुछ साथी बीमार हो गए, कुछ रोने लग गए, इमोशनल हो गए और कुछ जो थे वो फ़ौरन जो थे बिस्तरों में घुस गए और कुछ खाने को समझ नहीं आ रही थी और कुछ पीने की समझ नहीं आ रही थी और एक बहुत बड़ा स्ट्रेस था कि चंद घंटे बाद हमने जिजिला का ट्रैक शुरू करना है। जब हम अली कैंप पहुंच गए तो लोगों के दिल में जो है ला का खौफ शुरू हो गया। तो डिनर के बाद रात के 11 बजे हमने ग्रुप को निकाल दिया। इस टाइम रात 12 बज रहे हैं, मौसम क्लीन है, चांद निकला हुआ है और हमने अब जिजिला की तरफ जाना है। फुल बर्फ़ है, शदीद ठंड है और उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह फजर की वक्त तक इंशाल्लाह हम जिजिला समिट पे होंगे और उसके बाद फिर डिसेंट स्टार्ट करेंगे जो कि अगले कुछ 6-7 घंटे में हो जाएगा। तो ये आज की रात सबसे मुश्किल रात है इस पूरे ट्रिप की। तो बस अल्लाह आसानी करे, हौसले बुलंद है लेकिन हिम्मत डाउन है, सीधी सी बात है। जिजिला एक मुश्किल ट्रैक है, बहुत मुश्किल ट्रैक है, इसी वजह से इसको ट्रैकिंग का हज भी कहते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल ट्रैक है, रात होता है। तो जितनी फुटेज इंशाल्लाह बन सके बनाएंगे और उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सके करेंगे ताकि जो नेक्स्ट लोग आ रहे हैं उनको पता हो कि क्या एक्सपेक्ट करना है। बहरहाल ये 700 मीटर की चढ़ाई है तो एलिवेशन सिकनेस इज नॉर्मल और सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है। कुछ भी कर रहे हैं, हल्का सा स्वेटिंग ग्लास पहन रहे हैं, सांस चढ़ रहा है। एकदम से काली घटाई, बादल आए और फिर दोबारा से बर्फ़बारी शुरू हो गई। इस दफ़ा की बर्फ़बारी ज़रा कदर कम थी लेकिन वो वहाँ जो पत्थर थे उनको बहुत स्लिपरी बना रही थी। उस्मान भाई जो थे वो हमें, मुझे और साद अफरीदी को से थोड़ा सा आगे निकल गए और स्पीड के अंदर वो थोड़ा सा बेस, पहाड़ की बेस की तरफ मज़ीद और आगे चले गए। जो सूरत हाल ये थी कि उस्मान आसिफ भाई के पीछे जो रहमत भाई थे वो पीछे रह गए बहुत, हम आगे निकल गए और उस्मान भाई अकेले रह गए। और जब उन्होंने अपने दाएँ बाएँ देखा कोई नहीं तो वो उधर ही जाके शायद उन्होंने कहा कि मैं इधर थोड़ा आगे नहीं जाऊँगा। Once the rope starts, then it will be just you and the person in front of you and the person behind you. Nobody else. जब 4 बजे तकरीबन तो मैंने हेलमेट पहना हुआ था तो मेरा हेलमेट जो था वो समहाउ स्लिप होके नीचे गिर गया और जब नीचे हुआ तो मैंने ज़ोर से आवाज़ दी मेरा हेलमेट। मैंने कहा शायद कोई भाई वहाँ से आ रहा हो नीचे से तो लेता है। तो वादी के नीचे से आवाज़ दी कि भाई यहाँ तो लाश भी नहीं मिलती, हेलमेट कैसे मिलेगा। उसी देर में अल्हम्दुलिल्लाह हमें नीचे से आवाज़ें आने लगी कि उस्मान भाई और उनकी बाकी जो पीछे आने वाले थे वो मेरे सब ट्रैक लीडर और साथी और आने लग गए, आवाज़ें आने लगी कि पीछे से कोई मूवमेंट हुई है। आस्ता आस्ता हम लोग सफ़र करते गए, दिन की रोशनी फूटती चली गई। अल्लाह की शान ऐसी हुई कि सबसे पहले जो सूरज की किरण गिरी वो दूर केटू की पहाड़ की चोटी पर नज़र आई। वो केटू जो था एकदम रोशन हो गया और हमें ये बार बार आवाज़ें लगेंगी बस आखिरी है, बस आखिरी है, मुबारक हो, पहुँच गए, पहुँचने वाले हो, जल्दी करो, अब रुकना नहीं, अब आगे चलना है, आगे देखना है, अब मंजिल करीब है। This is my track. It's snow falling. This is Broad Peak, and this is the moon on my face. हाँ जी, टॉप पर पहुंच गए। और ये हमारे उस्मान भाई बहुत मशक्क़त के बाद और इंतहाई परसेवरेंस और आखिर मशक्क़त के बाद ये पहुँचे हैं और हम सारे इस वक्त लेटे हुए हैं और कुछ सेलिब्रेशन भी मुश्किल से हो रही हैं। Finally, Jijiला summit completed. Now we have to descend. K2, G1, G2.
पता कि सफ़र तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, सफ़र तो अभी शुरू होना है, दिक्कत तो अभी आनी है, तूफ़ान तो अभी बाकी है। जैसे ही हम लोगों ने नीचे देखा तो हम नीचे देख के हैरान हो गए, आंखें खुली रह गई और होश दंग रह गए कि नीचे की उतराई तो चढ़ाई से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Rockfall starts happening after once the sun is out, and then once the rock fall is happening, then including me, including Muhammad Khan, including Manzoor, everybody is after his or her own life. Nobody bothers about anybody else. उतरने में तो बहुत सारे मसाइल आ गए इनके साथ। ये लोग चल नहीं सके तो लोगों ने कोई पीछे से कोई आगे से धक्का देते हुए इनको हेल्प करते हुए जो है खिस्पान तक पहुंचाया। डिसीजन हो रहा होना तो आफियत वाला डिसीजन पिक करना चाहिए। अच्छा भला सारे कह रहे थे कंकॉर्डिया से वापस आते हैं, हमें था जीजिला करना है, बस जीजिला करना है जी। और सारे बीमार हैं, सबका बुरा हाल है, कोई एक बंदा नहीं जो आज बीमार ना हो। अब कल 22 किलोमीटर फिर चलना है और फिर परसों जान छूटेगी। अब बस हो गई भाई, अब घर वापस जाना है। खिस्पान पहुँच के फिर हम लोगों ने उनके हाल चाल पूछा, सर अभी दोबारा जिजिला का ख्वाहिश रखते हैं? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम ज़िंदगी भर जिजिला हम दोबारा नहीं आएंगे। समिट नहीं है ये, जिजिला नहीं है ये, एक मौत का जो है कुआं बना हुआ है। अम्मी ने कह के भेजा था कि ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना, लेकिन बात ही होती है कि लाइफ में अब करना तो है ना, मतलब एडवेंचर। तो इन केस यू आर सीइंग दिस वीडियो, इट मीन्स दैट आई एम डेड। पाकिस्तान जिंदाबाद। So there are a few things that I wanted to clear out. गर्मियों में यहाँ मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे गर्मियों में I wish I could have done better for Pakistan. पता नहीं पाकिस्तान, अल्लाह खैर करे पाकिस्तान की, बस खैर। ब्यूटीफुल कंट्री, अमेजिंग पीपल, पता नहीं क्या ही सेल्फ पिटी और नेगेटिविटी है जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते। मेरे ख्याल से एक चीज़ चाहिए पूरी नेशन को, एज मुस्लिम भी और एज पाकिस्तानी भी, और वो है पॉजिटिविटी। होपलेसनेस का कोई फ़ायदा नहीं है, सेल्फ पिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहना कि हमारे अंदर इतनी बुराइयाँ हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अपनी कंट्री है, हम इसमें आए हैं, भागने से क्या होगा। खैर मैं भी भागा था, और बाद में जाके एहसास हुआ कि नहीं, अपनी कंट्री होती है। आई विश के बहुत चेंज की ज़रूरत है, ऑब्वियसली बहुत चेंज की ज़रूरत है, लेकिन सिवाय एजुकेशन और एक्सपोजर के आ नहीं सकता ये चेंज। सेम गोज़ विद दीन भी, कि दीन में भी मायूसी फैलाई गई है, हर तरफ मायूसी है कि ये नहीं करोगे तो अल्लाह ऐसे मार देगा, ऐसे कर देगा तो ऐसा मार देगा। हो सकता है अल्लाह ना ही मारे यार, हो सकता है अल्लाह ताला बहुत प्यार करने वाला ही हो, तो ना ही मायूसी फैलाए, उम्मीद दिलाए लोगों को, अच्छा होगा, लोग कनेक्ट होंगे। बाकी डोंट गिव अप ऑन लाइफ। I wish कि everyone who is listening to this, may death find you alive। यानी जब मौत आए उस टाइम आप जिंदा हो, कम से कम ये ना हो कि जब मौत आए तो उस टाइम उससे पहले ही मर चुके हो। खैर, ट्राई टू मैटर, ज़िंदगी एक ही है, कुछ इम्पैक्ट करें, कुछ बड़ा करें। 9 to 5 जॉब ना कीजिएगा प्लीज़। अगर जॉब भी करनी है तो ऐसी जॉब हो जिसमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 1-2 करोड़ से गुजारा हो जाता है या 5-6 करोड़ से हो जाता है, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए। मनी एक गेम है, इसमें पागल नहीं हो जाना। सेम गोज़ विद फेम, कोई भी गेम पागलों की तरह नहीं खेलनी। हर चीज़ की ज़रूरत होती है, हर चीज़ एक ज़रूरत है। अगर उस ज़रूरत को पूरा नहीं करेंगे तो पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए अज़ाब बनेंगे, पूरी ज़िंदगी। मसलन खुश ना रहे, अमीर ना हुए या मशहूर ना हुए या प्यार ना मिला या शादी ना की या जो भी रिश्तेदारी ना निभाई, तो पूरी ज़िंदगी रिजेंटफुल रहेंगे। लेकिन इसमें बह गए,
तो पागल हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं है। तो ज़िंदगी अपने कंट्रोल में लें सर, और जिए इंशाल्लाह, और मिलते हैं अगले वर्ल्ड में इंशाल्लाह। तो सी यू सून।